Shall we wait for 2-3 more minutes? Okay. Then we can start. We shall start, na? Okay. So I welcome today Gauri, who is an alumni of Institute of Allied Healthcare Education under Dr. Amita. And today she has brought a very interesting topic. अभी इस पूरे अगस्त में we are having series on insulin resistance and metabolism. So Gauri is speaking about insulin resistance in weight gain and PCOS. So अभी सोसाइटी में बहुत सारे फीमेल्स हैं who are suffering from PCOS conditions and weight loss and weight gain conditions तो common है in both the genders. So audiences must be very much excited and interested to know the depth of this two topics, and we are also very excited to learn from Gauri. Thank you, Ruchi ma'am. Thank you, Ruchi. जैसे कि रुचि ने बताया कि today's topic and the whole series is based on insulin resistance. आपने ये सुना ही होगा. I'll share my screen. So this is the invisible epidemic going on in the society now. And अभी जैसे India is now called the diabetic capital of the world. So इसका जो preparedness है ना for everybody and the basic knowledge is compulsory nowadays in the society, that awareness of this phenomena is to be spread. Can you है see ना? my screen? क्योंकि India is the yes ma'am, visible. Is it visible? Yes. So, जैसे कि अभी रुचि ने बताया, the whole series will be based on insulin resistance. अभी बहुत सारा आपने YouTube खोला तो आवाज पहला होता है, अचानक से वेट गेन बढ़ रहा है, बेली फैट बढ़ रहा है. अच्छा, तो फिर आगे उसके आगे लिंक्ड और सारे डिसीजेस भी रहते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीसीओडी और पीसीओएस. वी विल डिस्कस कि क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हाट इज इंसुलिन, कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड is there, and the last point is it reversible or not. Yes, I want this today's discussion should be little interactive. So I will ask you in between, you please message me. You can share your answers or your point of view in chat box. Is it okay? Yes, Gauri, whenever I see some chat messages, I'll Yes. also interfere in between sharing the audience's chat messages with you. Yes. Thank you. Okay, so it is my humble request to all the participants today to put in their questions, so that like this becomes an interactive session between the speaker and the audience. क्योंकि ये थोड़ा सा ना ये मतलब it's this phenomena is in vogue now. Society needs to know कि है क्या ये. correct. So it's very कॉमन nowadays. This is very common. Like आजकल बहुत सुनने में आता है, अरे क्या हुआ, पीसीओडी है, अरे अचानक से कैसे, अभी अब वेट बढ़ रहा है, अभी क्या करे, वेट नहीं कम हो रहा है. पर्सन इज स्टक्ड इन दैट विशियस साइकिल कि मैं क्या खाऊं जिसके कारण मेरा वेट कम हो, जिसके कारण मेरा बेली जो बढ़ रहा है वो कम हो जाए. एंड डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर आवर पीसीओडी और पीसीओएस syndromes. विन, जैसे कि अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना है कि अचानक से वेट गेन बढ़ रहा है, वेट इजीली कुछ भी खाऊं, हवा से भी मेरा वेट बढ़ रहा है, कितना भी कुछ खा लूं कम ही नहीं हो रहा है, एंड देन आई गेट फेड अप एंड आई एंड अप विद द जंक फूड. ऐसे कि आई एम फीलिंग टायर्ड और मुझे ना रात में स्वीट खाने का बहुत क्रेविंग होता है. तो आप लोगों में से किसी ने सुना ही है? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव हर्ड इट. You can write it in chat box. Yes.
Are you all there? सबका ही ये होता होगा, आई एम श्योर। Yes. So So it's Kirti, all about, pardon? Gauri ma'am, Kirti has shared, yes, that this is a observation he has Yes. noted. Yes. So अभी Sneha is also agreeing. ये जो सारा खेल है, it's not about your willpower. It's not about the person's want to lose weight and he or basically she is not taking any efforts towards it. लेकिन ये जो सारा खेल है, it's all of her hormones. अच्छा आपके गौरी, hormones. जस्ट वन Yes. सेकेंड गौरी, Yes. आपके स्क्रीन पर है ना, देखो कैनवा में नीचे ना फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन रहता है, एरोज रहेंगे, डायगोनली एरोज रहेंगे, देखो उसको Align. करो आप, फुल Okay. स्क्रीन कर दो ठीक उसको। है. Is it okay? परफेक्ट परफेक्ट, यस। तो ये जो सारा खेल है वो हॉर्मोन्स का है. हॉर्मोन्स, यू नो देयर आर नंबर ऑफ हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी एक प्रॉपर सिस्टम के साथ वर्क होती है. और ये चलो हॉर्मोन्स इधर ठीक है उधर. माँ। पार्डन? हेलो। आई थिंक समवन इज नॉट ऑन म्यूट. ओके. सो ये जो सारा उथल पुथल हो जाता है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फूड, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वन रीजन, देर आर नंबर ऑफ रीजंस. और वो एड ऑन होते होते अचानक से हमें एक दिन पता चलता है कि हमारा वेट गेन बढ़ रहा है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस. अभी ये इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रिया क्रिएट करता है हमारे बॉडी में. एंड पैनक्रिया क्रिएट क्यों करता है इंसुलिन? क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं, कोई भी खाना हम लोग जो खाते हैं, इट कन्वर्ट्स टू एनर्जी. एनर्जी इज नथिंग बट ग्लूकोज. और वो ग्लूकोज अगर सेल को, हमारी बॉडी, आज लास्ट टाइम हमने देखा था हमारी बॉडी में ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स है. तो वो जो सब ग्लूकोज रहता है, वो सेल तक जाने का काम, सेल तक पहुंचाने का काम एक की करता है, दैट इज इंसुलिन. Insulin helps glucose to enters in our cell, and that gives us energy. Right? तो अभी लॉजिकली अगर आप सोचोगे, तो जब ये इंसुलिन काम नहीं कर, इंसुलिन बढ़ जाता है या इंसुलिन काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो हमें ग्लूकोज नहीं मिलता है. एंड दैट इज द रीजन वो टायर्डनेस फील होता है, कि मुझे मन तो कर रहा है एक्सरसाइज करने का, मुझे मन, ये सारा, ये मुझे पता है ये सब करना है, लेकिन मन नहीं हो नहीं पा रहा है. कैन नॉट टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इट. और ना शुरुआत तो अच्छी तरह से होती है, लेकिन बाद में ना थकावट हो जाती है. सो आई कैन नॉट कीप द कंसिस्टेंसी. सो द होल गेम इज बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन हार्मोन. हमें एनर्जी नहीं मिल जाती है प्रॉपरली. यस. तो इंसुलिन इज लाइक अ की एंड लॉक. अगर आपके घर में, अगर घर में किसी बंदे को एंटर करना है, तो पहले उसको घर का लॉक खोलना पड़ेगा. राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 10 लोग रहते हैं, तो सबका की नहीं चल रहा है, तो ऑल 10 हैज टू स्टे आउटसाइड और हैज टू आस्क समवन की हेल्पर टू रिमूव द लॉक, एंड देन दे कैन एंटर. राइट? तो जब हम खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज तो है साइड में हमारे बॉडी में, हमने खाना तो खाया हुआ है, लेकिन फिर भी एनर्जी क्यों ड्रेन लगती है? बिकॉज ये जो इंसुलिन की रहता है, दैट इज द की एक्चुअली to open the cell walls and ask cell to take the insulin or ask glucose to enter into the cell, जिसके कारण सेल वो एनर्जी हमें हमें वो अच्छी तरह से ग्लूकोज यूटिलाइज करके पूरा एनर्जी हम यूज कर सकते हैं. यस. अगर की लॉक, ये लॉक ही खराब है, तो क्या होगा? बॉडी बोलेगी कि मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, मतलब हमें और ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है. तो व्हाट यू विल डू? पैनक्रिया विल क्रिएट मोर इंसुलिन. हमें और कीज ढूंढेंगे. एक की नहीं चल रही है, दूसरा की लगा के देखो, तीसरा की लगा के देखो, लेकिन नहीं चल रहा है. ये सिस्टम, की लॉक का सिस्टम खराब हुआ है, तो उसके कारण ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो रहा है, तो एनर्जी नहीं मिल रही है हमें.
ये डेवलप कैसे होता है? जैसे कि बताया, हमने बहुत सारा शुगर खाया, ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, यू नो आवर बॉडी इज ऑलवेज इन द रिपेयर मोड। हमें कुछ ज्यादा होता है तो उसके लिए, उसको सस्टेन करने के लिए बॉडी का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो ब्लड शुगर बढ़ता है तो क्या होता है, पैनक्रिया क्रिएट करता है इंसुलिन। इंसुलिन तो क्रिएट हुआ, लेकिन सेम थिंग, ये सेल में नहीं जा रहा है। अभी सेल में नहीं जा रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बॉडी बोल रहा है कि नहीं, पैनक्रिया से जो इंसुलिन आ रहा है वो नहीं, वो इतना काफी नहीं है, तो क्रिएटिंग मोर इंसुलिन। लेकिन होता क्या है, एज अ की लॉक सिस्टम इज डैमेज्ड, वो नहीं एंटर हो रहा है, तो ग्लूकोज तो सेल में नहीं जा रहा लेकिन बॉडी में है। तो अभी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या करेंगे हम, इट कन्वर्ट्स इनटू फैट, एंड दैट्स व्हाई हमारा फैट बढ़ता है उस केस में। एंड दिस साइकिल गोज ऑन टिल वी ब्रेक दिस साइकिल। और अभी इसका तो पता है हमें शुरू कहां से हुआ, ये टू मच ऑफ शुगर इंटेक और टू मच ऑफ कार्ब्स, नॉट सिंपल कार्ब्स। ये साइन आपने हमेशा कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। और पहले भी हमने शुरुआत के जो स्लाइड था उसमें भी हमने वही सोचा पूछा था कि अचानक से वेट बढ़ रहा, बहुत ज्यादा ड्रेन, एनर्जी ड्रेन हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विमेंस में जिनको पीसीओडी होता है, आपके आजू बाजू में होंगे, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, स्किन इश्यूज हो जाते हैं, देर आर हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होता है फेस पे, शुगर क्रेविंग कुछ ज्यादा ही होता है, और ये हेयर फॉल शुरू हो जाता है, पुअर स्लीप क्वालिटी होती है। ये इवन दो इट्स बिकॉज ऑफ द, हम लोग बात कर रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन जैसे कि अभी प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, तो हमने लास्ट मंथ में देखा था कि प्रॉपर स्लीप नहीं होती तो क्या होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल से अगेन क्रेविंग होता है, क्रेविंग अगेन लॉट ऑफ ग्लूकोज इन अवर बॉडी, इंसुलिन बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ जाता है तो धीरे धीरे एक, ये प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे बढ़ जाती है। एंड देन अचानक से हमें लगता है कि अरे कल तक तो मुझे, इतने सालों तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अचानक से कैसे हुआ? ये अचानक नहीं होता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारा लाइफस्टाइल कैसे मैटर करता है, हम कितना मूवमेंट हमारा है, हमारा स्लीप कैसे है, ये सारा काउंट करके वी एंड विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेज पे। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि हमें तो अभी देखा है कि वेट गेन तो बढ़ जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ने के कारण क्या होता है, वी द पर्सन में एंड अप इन प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटीज। प्रॉपर एनर्जी ना मिलने के कारण सेल्स को वी फील लो और फटिग। It also affects, it also end up with the condition like fatty liver, heart risk, और बेसिकली एक हार्मोन चेंज होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वन, द साइकिल गोज ऑन एंड इट एंड्स, मे बी ऐसे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीसीओएस होता है, एक्ने होते हैं, हेयर ग्रोथ होता है, एंड मूड स्विंग्स हो जाते हैं। सो जरूरी नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ओनली वेट गेन इज द रीजन, वेट गेन ही दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे करके दीज आर द ऑल स्टेप्स दैट पर्सन में एंड अप विथ। अभी वेट लॉस कम बंदी इतना भी ट्राई करे, वेट लॉस डिफिकल्ट क्यों होता है? यस, अ, someone wants to say something? Yes, बिकॉज मैम उसका जो है फैट स्टोर हो रहा है बॉडी में। yes, क्योंकि जो भी वो खाना खा रही है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है बट वो सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो दैट perfect. इज वाई वो फैट की फॉर्म में जमा हो रहा है उसकी बॉडी में। तो
चाहे वो कितना भी वेट लॉस की कोशिश करे, लेकिन जब तक वो इंसुलिन जो है आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा प्रॉपर तरीके से, तो मुझे लगता है कि वेट लॉस शायद नहीं हो पाएगा। बिकॉज देयर इज अ केस इन माय फैमिली, देयर इज अ मेड हु इज कमिंग इन माय फैमिली, तो उसके साथ ये इशू है। वो जितना भी वेट लॉस की कोशिश करती है, बट उसको वेट लॉस हो नहीं रहा है, भले वो कितना ही डाइट कर ले, कुछ भी कर ले। तो दैट इज वाई मैं इसको सुन भी बहुत अच्छे से रही हूँ, ताकि मैं उसको समझा सकूं कि वाई इट इज हैपनिंग विद हर ना। यस, और आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, उसका कन्वर्जन हुआ एट द एंड ग्लूकोज में। ग्लूकोज बॉडी में है, डिटेक्ट हुआ, तो पैंक्रिया ने क्या किया, इंसुलिन सिक्रेट किया। हम्म। लेकिन वो जो ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, हम्म। क्योंकि ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इनटू अवर सेल। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इंसुलिन और वो की लॉक खराब हुआ है, वो सिस्टम। तो उसके कारण नहीं हो रहा है, एंटर नहीं कर पा रहा है। तो सेल इज आस्किंग कि भाई मुझे थकावट लग रही है, मुझे एनर्जी चाहिए। तो सिग्नल क्या मिल रहा है अपने ब्रेन को कि वी नीड, सेल नीड्स एनर्जी। तो एनर्जी। से ब्रेन पैंक्रिया को सिग्नल देता है कि इंसुलिन क्रिएट करो, क्योंकि सेल को नहीं मिल रहा है ग्लूकोज। तो एक और ज्यादा इंसुलिन क्रिएट होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पे इंसुलिन भी ज्यादा है और ग्लूकोज भी हो रहा है, करेक्ट? तो उसके कारण, ग्लूकोज ना मिलने के कारण, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में मिल पड़ा है, उसका क्या करेगा बॉडी? बॉडी विल कन्वर्ट इट इनटू फैट, एंड स्पेशली अराउंड बेली। आजकल हम लोग बहुत, नॉट ओनली फॉर द विमेन, इवन मेन में हम लोग, मेन मेल्स में भी हम लोग देख रहे हैं जिनका सिटिंग जॉब रहता है, एक्टिविटी लेवल्स कम रहते हैं, हर एक का बेटी रहता ही है, राइट? और उसके अभी होता क्या है, भूख तो अभी, हमें तो एनर्जी नहीं मिल रही है, तो और खाना चाहिए, क्योंकि क्रेविंग हो रहा है, हमें बॉडी एकदम से थकावट लग रही है, मतलब मुझे कुछ तो खाना है। अब इस कुछ तो खाने में वी एंड अप, नॉर्मली अ पर्सन एंड अप विथ क्या, मुझे पहले शुगर खानी है, मुझे पहले कोई तो घर की नॉर्मल शक्कर भी चलेगी, नहीं मुझे वो खानी है क्योंकि मुझे बहुत थकावट लग रही है। और नहीं तो क्या होता है, मैं चॉकलेट लेके आता हूँ, लेके आती हूँ और वो खाती हूँ। नहीं तो क्या, अरे इजीली बाहर मिल रहा है ना केक, वो खाते हैं, ब्रेड मिलता है इजीली, जो इजीली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वी प्रेफर, अ पर्सन प्रेफर दैट। अभी वो सारे ऑप्शंस जो इजीली प्रेफरेबल है, आर दे गुड फॉर हेल्थ? नो। उससे हंगर अपने थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन फिर वो क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, अगेन इट एंड अप विद फैट स्टोरेज। और फिर उसके कारण अगेन हमारा क्रेविंग हो रहा है, क्रेविंग होने के बाद और ज्यादा खा रहे हैं, और खाने के कारण वेट गेन हो रहा है, राइट? So this is a vicious cycle. Now we have to break, we have to look for how we can break this cycle, correct? अभी हेल्दी खाना इज वन ऑफ द ऑप्शन, लेकिन वो खाना कैसे शुरू करें, खाने का तरीका कैसे रहे? जैसे कि अभी करंट साइकिल हमने देखा, वी आर, आई एम सेइंग शुगर, इट्स नथिंग, इट्स अबाउट द ऑल फूड दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। लेकिन इसमें कितना अमाउंट किस फूड का है, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी भी देखेंगे। तो दैट्स व्हाई आई सेड दो, वी आर, आई एम कंसीडरिंग फूड एज अ सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो हमने ले लिया, इंसुलिन क्रिएट हुआ, फैट स्टोरेज हो रहा है, फिर ब्रेन बोल रहा है नहीं यार, भूख, थकावट तो महसूस हो रही है और खाना चाहिए, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो ये साइकिल अभी चल रहा है। नाउ वी हैव टू कट दिस साइकिल। तो क्या करना है, वी हैव टू फोकस बेसिकली ऑन प्रोटीन इंटेक। यस, प्रोटीन इंटेक कितना है दैट ऑफ दैट पर्सन। यस, वी आर टॉकिंग कि रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने, शुगर नहीं खानी है, चॉकलेट अवॉइड करो, ये सब बोलते हैं हम। लेकिन जो मेन कंटेंट है, वो प्रोटीन का क्वांटिटी कितना ले रहा है वो बंदा या वो बंदी। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल फॉर द फैट वेट गेन। यस, so that's why the amount of protein in every meal is very important. प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से हमारा ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है,
तो उसके कारण शुगर राइज जल्दी नहीं होता है, और शुगर राइज नहीं होता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट शुगर क्वांटिटी रहता है, राइट। एंड प्रोटीन इज बेसिकली मसल बिल्डिंग फैक्टर, दैट प्रोटीन को हजम करने के लिए बॉडी को वर्क करना पड़ता है, तो उसके कारण हमें प्रॉपर जो एज अ ब्लड का शुगर भी मेंटेन स्टेबल रहता है, तो हमें एनर्जी भी अच्छी तरह से मिलती है। Yes, and the protein also gives us satiety with healthy fat. That's why amount of protein in every meal is important. Now we will think about how insulin resistance is related to PCOS or PCOD. High insulin resistance मतलब क्या है? बहुत ज्यादा इंसुलिन बॉडी में है। अभी बहुत ज्यादा इंसुलिन बॉडी में होने के कारण होता क्या है, अलग हार्मोन जो है एंड्रोजन करके टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ जाता है। अब वो बढ़ने के कारण होता क्या है, पुअर इवोल्यूशन, मतलब एग्स मैच्योर प्रॉपरली नहीं होते हैं, तो उसके कारण होता क्या है, इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, ओवुलेशन डिले होता है, या कभी कभी अपसेंट भी हो जाता है, और इसके कारण फर्टिलिटी भी अफेक्ट होता है, राइट। नाउ वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल, सो अगेन फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन द फूड इनटेक। सो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे नहीं खाने में लिमिट रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर, ये हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए उस टाइम पे जब हम वी आर वर्किंग ऑन आवर वेट लॉस जर्नी एंड वी आर वर्किंग, अ पर्सन इज वर्किंग ऑन पीसीओडी रिवर्स और पीसीओएस रिवर्स, एंड वी हैव टू सिलेक्ट लो ग्लाइसेमिक फूड। Yes, mostly we are considering about the complex carbs, और जिसके जो फूड खाने से हमारा शुगर लेवल, a person's sugar level will not increase quickly, it will grow, it will go gradually. Yes, हाई फाइबर हम फूड हमें लेना चाहिए, हमें हेल्दी कुक्ड फूड में फॉर्म में खाना चाहिए, ईट ऑन टाइम। यस, प्रॉपर वाटर इनटेक होना चाहिए, अ पर्सन शुड हैव 2 to 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे। बैलेंस्ड मील होना चाहिए, जैसे बैलेंस्ड मील में हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन होता है, वी शुड हैव प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स इन एवरी मील। यस, एंड दिस, ऐसे नहीं कि मैंने 2 महीने में किया, वेट कम हो रहा है फिर मैं छोड़ दिया, ऐसे नहीं, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल अभी ये फेज दिखने के लिए मे बी इट हैज टेकन मेनी इयर्स, लेकिन अभी आपने अगर 2 महीने में अगर आपका रिजल्ट दिख रहा है, एंड इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, देन यू विल एंड अप अगेन विद अ वेट गेन। हम वेट अचानक से बढ़ जाता है कई लोगों में, क्योंकि अरे 2 महीने में किया मैंने, वेट खत्म हुआ, लेकिन अभी मैंने वापस खाया शुरू किया तो बढ़ गया है। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर कोई बंदा वेट लॉस जर्नी पे है या वेट मैनेजमेंट जर्नी पे है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मील, चीट मील वंस इन अ वीक इज ओके, लेकिन आज सिस्टर के साथ वन चीट मील हुआ एक हफ्ते में, आज किसी फ्रेंड के साथ हुआ, ये ऐसे एक एक दिन करके पूरा हफ्ता चीट मील, एंड यू एंड अप विद चीट मील, एंड देन वो कंसिस्टेंसी हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज वेट गेन अगेन। जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, हमें हमारा जो प्लेट होता है उसमें आधी आधा प्लेट हमारा होता है विथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसमें से 1/4 पार्ट जो रहता है दैट इज ऑफ प्रोटीन, 1/4 पार्ट जो रहता है दैट इज ऑफ होल ग्रेन। इसमें ब्राउन राइस आते हैं, ओट्स आते हैं, होल व्हीट आता है, एंड विथ अ small amount of healthy fat. Healthy fat में हमने we can sprinkle olive oils on a salad. We can use nuts and oil seeds. That will help. As we all know, the healthy fats are very important for our brain health, heart health, our body hormonal functions. So that's why this simple plate
guide is very useful for everyone, and please follow this for every meal. And eat mindfully. It's very important. Eat on time and eat mindfully. When you are eating, please chew it properly. उसके कारण हमें सटाइटी मिल जाती है. एंड वंस द ब्रेन गेट्स द फीलिंग कि सटाइटी मिल जाती है, तो हमें वो फुलनेस वाला फीलिंग भी सिग्नल हमें मिल जाता है ब्रेन को. बट इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर फूड, हम क्या खा रहे, हम मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं या कुछ टीवी देखते देखते या पढ़ते खा रहे, तो वी आर नॉट पेइंग अटेंशन. तो हमें वो, एक तो हम खाना एंजॉय नहीं कर पा रहे, और ब्रेन का भी वही सिग्नल, ब्रेन भी गेट्स कंफ्यूज कि अभी क्या है, हम फुल है या नहीं है, या और खाना है. सो देन द पर्सन अगेन दैट वो विशियस साइकिल शुरू हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट, chew every bite properly, feel it, enjoy your food. Is this someone wants to say something? No, ma'am. Meal Clear, ma'am. time. मील टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी का कोई गेस? एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? मील टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? Are timed according to the circadian rhythm. The Yes, release haptic. करेक्ट. एक प्रॉपर टाइम रहता है. हमें बचपन से एक आदत हो जाती है कि इस टाइम पे हमें ब्रेकफास्ट करना होता है, इस टाइम पे हमें खाना होता है. वो बॉडी को भी आदत हो जाती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो दैट. और अगर हमने ये टाइम मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट मिस कर दिया हमने, होता क्या है, कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना खा लेते हैं, बाहर का कुछ जो उल्टा सीधा जो भी मिलता है वो खा लेते हैं. कभी भी एंड अप विद वड़ा पाव, कभी भी एंड अप विद सैंडविचेस और समथिंग लाइक दैट. लेकिन उससे बेटर अगर हम लोग घर से अगर जल्दी जल्दी में जा रहे हैं तो वन फ्रूट एंड सम नट्स एंड ऑयल सीड्स अगर खा लेते हैं, तो इवन दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल. नहीं तो उसके कारण बाद में एसिडिटी होती है और वी एंड अप विद मोर इनटेक ऑफ फूड विच इज नॉट गुड. उसके कारण फिर ग्लूकोज का लेवल अचानक से स्पाइक हो जाता है, फिर दैट द विशियस साइकिल अगेन. यहाँ पे लास्ट टाइम हमने हर एक सेशन में देखा कि व्हाई प्रोटीन इंटेक इज इम्पोर्टेंट. सो स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन. प्रोटीन क्यों? क्योंकि वो सैटिस्फैक्टी मिलती है, यू आर फुल फॉर द लॉन्ग पीरियड. सो वो खाने का बार बार जब वापस खाना है ऐसे मन नहीं करता है. दैट कीप्स यू फुल फॉर द लॉन्गर टाइम. अवॉइड फ्रीक्वेंट स्नैकिंग. फ्रीक्वेंट स्नैकिंग क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि बार बार खाएंगे, बार बार इंसुलिन क्रिएट होगा. So to avoid that, to break that cycle, we are asking eat on time and avoid frequent snacking. फिर रात का खाना, रात को लेट नाइट खाना अवॉइड करना है. प्रॉपर रेस्ट जरूरी है. एज समवन सेड, सर्काडियन रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो बॉडी, जब हम सोते हैं तो बॉडी खुद को रिपेयर करती है. अगर उस प्रोसेस को हमने डिस्टर्ब किया तो क्या होगा? बॉडी को लगेगा कि अभी रिपेयरिंग का टाइम नहीं है, तो वी शुड नॉट डू एनीथिंग. तो वो अगेन कंफ्यूज होगा. अगेन द ब्रेन सिग्नल्स विल बी डिफरेंट. देन और ज्यादा उथल पुथल होगा. एंड वी नॉर्मली सजेस्ट एवरीवन कि वॉक आफ्टर मील, 10 to 15 minutes walk after every meal. Why? It's very important to control the blood sugar level. जब हम लोग मसल्स यूज करते हैं तो जो ग्लूकोज बॉडी क्रिएट करती है वो मसल्स में डायरेक्टली चले जाते हैं व्हेन वी आर यूजिंग मसल्स. सो वो भी हमें हेल्प करता है टू ओवरकम और टू वर्क ऑन दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो नॉर्मली बोला जाता है कि खाने के बाद 1 घंटे के बाद कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करो जिसके कारण वो ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए. जो शुगर लेवल बढ़ जाती है, राइज हो जाता है, वो कम होता है, कंट्रोल में आ जाता है. अभी द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू, योगा. फर्स्ट वन इज योगा, इवन दो इट्स ऑन अ 4th नंबर. योगा इसलिए क्योंकि दैट हेल्प्स अस टू कीप कंट्रोल ऑन आवर माइंड.
helps to reduce stress and cortisol, helps for the hormonal balance. Easy walking, as I said, 10 to 15 minutes walking after every meal, and then you can have 45 minutes walk. पार्क में वॉक करो या सोसाइटी में वॉक करो. डेली एक्टिविटीज में है, जैसे कि मैंने बताया कि एंटी ग्रेविटी वर्कआउट्स रहते हैं, जैसे कि स्टेयर्स चढ़ना. दैट हेल्प्स. हम लोग वी आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो वी आर यूजिंग वर्किंग ऑन आवर मसल्स. व्हेन मसल्स आर इन वर्किंग मोड, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जल्दी हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल एंड अगेन ऑन द इंसुलिन. Resistance training, again, it's helpful for the muscle building. So glucose in the blood goes to muscle and it improves the insulin sensitivity. So all these workouts are helpful to keep yourself healthy and with a stable with energy. अब लाइफस्टाइल हैबिट्स हम लोग इतना सारा बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल पीसीओडी और जो बाकी के जो डिसीज है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इट्स बिकॉज कि हमारा जैसे कि एक तो स्ट्रेस रहता है. हम लोग आजकल सन में नहीं जा रहे, बिल्कुल भी हम लोग सनलाइट नहीं देखते. इतने बिजी हो गए कि सुबह कहाँ से मतलब सनलाइट कहाँ से आ रहा है क्या कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर ओन वर्क. लेकिन रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सुबह का एक 10 to 15 मिनट्स सनलाइट सबने एक्सपोजर होना चाहिए. दैट हेल्प्स टू फॉर द बॉडी क्लॉक सर्कैडियन रिदम, एंड इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज. माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए. ईट स्लोली, enjoy your food, chew it properly. That helps for the understand our fullness, our hunger, and our satiety also. So that's why we should eat mindfully. और जब हम लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो हमारे जो फूड्स है जो हमें अवॉइड करने हैं उसके लिए क्रेविंग भी नहीं होता है और उसके लिए मन भी नहीं करता है वो खाने का उस टाइम पे. when we are having a habit of mindful eating. स्ट्रेस मैनेजमेंट, आजकल हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस होता ही है, लेकिन वी शुड पर्सन शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल नाउ. तो उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, तो उसके लिए क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण अगेन कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल के कारण अगेन क्रेविंग, अगेन इट एंड अप विद द बेली फैट, एंड अगेन उसके बाद और ज्यादा पूछ बढ़ती ही जाती है उसकी. तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके लिए मेडिटेशन है या डांस है, जो भी आपको अच्छा लगे, वन शुड फॉलो इट. प्रॉपर 7 to 9 आवर्स का 8 आवर्स का स्लीप तो होना ही चाहिए, एंड स्लीप विद अ प्रॉपर स्लीप हाइजीन, जहाँ पे अंदर प्रॉपर डार्क, नो लाइट्स, नो स्क्रीन, एटलीस्ट फॉर 1 hour बिफोर योर स्लीप टाइम. और last but not least, very important, drink enough of water. It helps to improve the metabolism, it improves your digestion and gives you energy. It sometimes हमें ऐसे भी होता है कि भूख लगती है, लेकिन हमें एक्चुअली लगी होती है प्यास, लेकिन बॉडी का सिग्नल ऐसे होता है कि नहीं बहुत थकावट लग रही है, बहुत मन कर रहा है कि हमें कुछ तो खाना है. खाते हैं लेकिन फिर भी वो फुलनेस वाला फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि we are dehydrated and we want water. Our body wants water. So इसके लिए वो hunger pangs कम करने के लिए that is very helpful. Keep yourself hydrated. अगर पॉसिबल नहीं है तो अलार्म लगा के भी कर सकते हो. आजकल मोबाइल पे हर एक बहुत सारे एप्स है जहाँ पे आपको पता चलता है. आप यू कैन कीप अ रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर पर्टिकुलर आवर्स, so that your intake will be 2 to 3 liters per day. Yes, if you're consistent, then definitely you can see your transformation. Can it be reversed now? अभी इतना सारा होने के बाद यहाँ पे तो लिखा है yes, लेकिन आप
Are you convinced कि ये reverse हो सकता है? Can we work on it? Yes? Yes. 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 Definitely we can work on it. जैसे अभी हमें पता है कि it's because of the insulin resistance or it's because of the stress factor, it's because of the lifestyle what we are following. So if we work on all these factors, so pardon, someone is not on mute. So all these small changes definitely will give us the result, and we can reverse our piece. Person can reverse her disease. So how many do you remember? How many of you all remember 5 W's and 1 H? आप लोगों में से कितने लोगों ने लिखा है अपना 5 W's and 1 H? और कितने लोगों ने काम करना शुरू किया है? Do you remember 5 W's? Yes. So यहाँ पे फर्स्ट W जो है हमारा वो है what is affecting us? What is affecting a person? It's insulin resistance, whether it's a weight management or we are talking about the PCOD. But we have to work. What is the reason? It's insulin resistance. Why do you want to work? Because weight management है, PCOS है, diabetes है, or any other heart diseases. Who all are? Who needs to work? The person who is obese or having any of these disorders. When person can start? As per my suggestion will be should start from today. ठीक है, पहले नहीं किया, आज से कर सकते हैं. आज से डेफिनेटली कोई भी कर सकता है. अगर हमने सोचा तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं आज से. कहाँ से करना है? फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट. We can start from the place where you are sitting. There are few exercises. You can start your small activities from the place you are sitting, from the place from your home, from your workplace. In your daily routines, you can add small activities. You can change your food habits. You can make sure that you can make sure that about your meal plan, about your meal plate, how the plate should be. You can work on it. यहाँ पे इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है. जो घर पे बनता है उसमें से सारी चीजें हमें बस प्लेट में इस तरह से अरेंज करनी है ताकि हमारे प्लेट में आधा हिस्सा वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सलाद हो, 1/4 में प्रोटीन का पार्ट हो और 1/4 में हमारा होल ग्रेन का पार्ट हो. एंड हाउ यू कैन स्टार्ट? तो हम एक बैलेंस डाइट से you can start exercise, start doing your activity. Important, these two are very important things. Quality sleep honi chahiye और stress management. And definitely we should have medical follow. So this framework will help us for the healthy lifestyle and sustainable lifestyle. So key takeaways, आपको इस सेशन से आपने क्या आपको पसंद आया? आपने क्या पॉइंट्स है जो आपको ऐसे लगते कि नहीं ये हमें इस पे काम करना है या ये इम्पोर्टेंट है? यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स. Ruchi, can you please help me to... Ruchi, are you there? Yes. So Could you please help Kirti, me if somebody Kirti, yeah. Kirti answered that timing and regularity is critical. Okay. That's your understanding? Timing, actually I didn't get it. That's timing. See, like One should mentioned, follow. yeah. One should follow, right?
the timings. Yeah, Yes, that's correct. yeah. One should, If you like you said about 5W and 1H, no? So like yes, timing would be the answer to when. So this is critical, no? Like not to yes, eat very that's correct. frequently and Perfect. that circadian rhythm that Yes, Kirti also answered the same thing. Now she's again stressing upon that timing and regularity is a must. yes, one should Must to follow follow. timings. One should, yes, one must follow. क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा तो हम लोग कुछ उल्टा सीधा खाएंगे, और एल्स वी विल एंड अप विथ, अगर हम लोग खाना भी खाएंगे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो फिर एसिडिटी भी हो जाती है. And then Seema is mentioning that a small consistent habit can make changes. Yes, that's perfectly correct. A small and consistent should help us to give us sustainable results and a healthy and long life. Yes. So, and then self-control, activity, stress management, and meal planning. These are Yes, mentioned by Ritesh sir. yes, sir, definitely. One should have control on what, as I said, mindful eating होना चाहिए. But stress management is also very important. स्लीप प्रॉपर होना चाहिए. अगर प्रॉपरली स्लीप होता है तो हमारा बॉडी का जो हार्मोनल फंक्शंस है वो बहुत वो उसको बैलेंस करने में बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, with all other factors together. And as I say, small changes. So there's a quick question for you all. So can you please answer in chat box? तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसमें, तो what could be the answer for this? I know most of you will answer, you will give the correct answer. So Kirti is saying that diabetes is also called as a disease of the rich. So yoga as a tool to practice mind control is an exercise in itself. आजकल शुरू शुरू में ऐसे, मुझे जैसे कि एज पर माय नॉलेज, शुरू शुरू में ऐसे बोला जाता था कि डायबिटीज इज ओनली, कि ये बड़े लोगों का प्रॉब्लम है. लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ द उल्टा सीधा खाना, बाहर का खाना, स्ट्रेस फैक्टर, पोल्यूशन और प्रॉपर स्लीप ना होने के कारण बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो प्री डायबिटिक हैं. लेकिन आपने सही बात बताई कि अगर योगा आप करेंगे तो दैट विल हेल्प अस टू कंट्रोल स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड वी हैव टेकन अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स to come out of this vicious cycle of insulin resistance. And many Basically, of ma'am, our people who are here, like Dr. Kumudini, Ritesh sir, Suchita, Neelam, everybody is convinced saying the answer as B, insulin. Yes, yes, that's correct. And there's the last one. आपको क्या लगता है, what is the common sign of insulin resistance? Kirti answers A, frequent sugar cravings. That's right, that's correct. So that's all for today. Just a second, let me check. Yeah. And as you all know, at IHE, we are having sessions for yoga as well as for exercise. I think it's in the morning also and evening also, right, Ruchi? Yes, so morning, the first batch is held at 7:30, and then the second batch starts at 9:15 to 9:30. And in the evening, we are having one batch of procrastination and habit building at 5 p.m. So we can take a step towards our healthy life, and that will help us to be consistent in this in this journey, right? So as you all know, I'm a student of IIT. I'm very thankful to ma'am, क्योंकि मैम ने हमेशा हमें हेल्प की है. कभी भी मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैम इज ऑलवेज देयर
और मैम टाइम अलग से टाइम लेके वो सेशंस हर एक वीक में वो डाउट क्लियरिंग सेशंस जो लेते हैं उसमें हेल्प करते हैं, उसमें वो दैट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। एंड देन वी कम बाकी के जो हमारे जो बाकी के जो हमारे पेयर्स रहते हैं उनके भी डिस्कशन सुन के बहुत ज्यादा हमारा भी नॉलेज बढ़ जाता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू IIG एंड अमिता मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Gauri. So that was a very Stop knowledgeable, sharing. yes. So that was a very knowledgeable session shared on insulin resistance and its association with weight gain and PCOS symptoms. So, in conclusion, I will also like to briefly mention about the services that we have at IAHA. So, IAHA stands for Institute of Allied Healthcare Education, founded by Dr. Amita Golande. And myself and Gauri Bhate, we have studied in diploma in nutrition and dietetics, and we are the alumni of IAHA. So, academically, if you are interested, then the platform offers certification in nutrition, and secondly, the diploma degree in nutrition and dietetics. And as a health beneficiary at this platform, nutritionists provide uh, dietary support in case of cure from different diseases and different lifestyle ailments. And the exercises are also held in this platform thrice a day, as the different timings I mentioned. And meditation and mindfulness sessions are also now being regularly held on weekends. So, as per your interest, you can join this platform for academically joining the courses being offered, and in case of recovery from any of the diseases, this platform can also be approached. And Dr. Amita Gulande, she is herself a homeopathic practitioner. So, in the wellness aspect, we are covering the basic pillars like homeopathy, nutrition, meditation, and physical exercises. And on every Wednesday, we are conducting the wellness related talks, which is uh, generally presented by the alumni and also the doctors who are present at IHA platform, like Dr. Kumudni and Dr. Sayali and Dr. Amita Gulande herself also appears. So for today's talk, I thank Gauri. She has initiated this month's series on the insulin-related epidemic. She wonderfully covered the basics, right from what is insulin and from where which uh, organ releases it. And then she went on to the issues and the symptoms, which are weight gain and that which is, and Sayali, she mentioned that the weight gain in that journey, sometimes the weight loss becomes very, very difficult. So that is where the insulin resistance could be the root cause. And then how PCOS appears as a symptom in case of insulin resistance. Then she went on to describe the how should the dietary modifications be done. So that habit building can be done, and how should the plate be divided that such it contains 1/4 proportion of protein and 1/4 proportion of healthy good fats, and the carbohydrates amount is restricted to 1/4. So that is how the protein intake has to be increased in order to regulate the blood sugar intake, and also the exercises has to be included so that blood sugar is metabolized and regularized, or they say the importance of different type of exercise like resistance training, and जैसे this muscles पे अगर हम लोग काम करेंगे तो फिर glucose absorption will be faster. So this is a very key point. Okay, why is it important to exercise? Because when our muscles come into play, then Thank you, we do Ruchi, for yeah.
briefing it in a short manner, the whole series, whole session in a short way. That is very important. Yes, Thank you. Thanks a lot. yes, yes. So I also thank our participants, Kirti, and she participated nicely by answering circadian rhythm, and she also mentioned the type 2 diabetic situation in one of her family members. So that is how the today's topic was clearly, I guess, if everybody understood the topic very clearly. And with this, we will conclude today's talk, and I express my gratitude to Gauri. And we are looking forward to delving more deeply into the further upcoming sessions in the next Wednesday, where Dr. Kumudini and then Dr. Sayali and Pooja will be covering more impacts of insulin resistance. So that is how, like, we hope forward to learn every aspect of insulin resistance and how it is trembling the Indian society these days. Okay, so with this, I open the forum now for question answer to all our participants. किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आई वेलकम ऑल ऑफ आवर लिसनर्स. Gauri will be more than happy to answer doubts from today's session. Gauri, you are on mute. Definitely, I would like to discuss also. I don't. That's, and I will be happy because everyone has enjoyed the session. The session was so simply conducted that our audience, one of the participants is saying that everything is clear. And she is expressing your thanks. Thank you. Thanks a lot. All right. Neha, you have a question? मैम, हाँ मैम, ये क्वेश्चन है कि जैसे डिलीवरी के बाद हम सबका लेडीज का वेट ना 15, 10, 12 ऐसे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. ऑलमोस्ट 90% लेडीज का होता ही होता है. एज इट इज मेरा भी उतना ही हुआ है, ठीक है. पहले तो मेंटेन था, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज होता गया. अब जैसे मान लो मैं डाइट फॉलो भी करती हूँ, लेकिन मतलब नींद पूरी नहीं होने के कारण, स्ट्रेस के कारण है, और ये मतलब बच्चे को देखना होता है, कई बार नहीं हो पाता काम. नींद आ रही होती है, योगा छूट जाती है, योगा ही छूट जाती है, बाकी सारे काम करने ही पड़ते हैं हमें. तो उस केस में कैसे करें? मतलब डाइट पे भी मैं फोकस करती हूँ कि एटलीस्ट डाइट तो फॉलो करूं, है, लेकिन फिर भी ना, और मेरे सबसे ज्यादा फैट ना टमी एरिया में ही बढ़ा है, क्योंकि वही सिटिंग, पहले फीड करवाना है, फिर बैठ जाओ, खाना करो, फिर बैठ जाओ. जब हमारी बारी आती है तब तक हम इतना थक जाते हैं, हम सोचते हैं हम बैठ ही जाए अब. तो उस केस में क्या करें हम? तो ये बहुत ही concerning question है, not only from Neha but for all the mothers, है ना? So हाँ. Gauri, would you like to answer for this? देखिए, जैसे मैम ने बताया कि मैम ने खुद से ही आंसर किया है इस क्वेश्चन का कि स्लीप प्रॉपर नहीं होती है. हाँ, ये फर्स्ट सारा रीजन तो उल्टा. यही है. अब मानो, मतलब मैं अभी कल रात से अब तक सिर्फ 4 आवर की स्लीप हुई है मेरी, जिसमें मैं एक बार फीड भी करवाया है बच्चे को. मैम अभी ना, जैसे कि ओके फाइन कि स्ट्रेस आता है इस चीज का, लेकिन मुझे ऐसे सजेस्ट करना अच्छा लगेगा कि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा आपका. नहीं, अब इंस्टेड मैं छोड़ रही हूँ. आपके ये सेशन लेने से ना फर्क पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ नहीं लेना, मुझे टेंशन नहीं लेना, ठीक है. मैं सोचती हूँ, और चाहे 10 मिनट मुझे करना पड़े, चाहे 20 मिनट्स करना पड़े, अपने बच्चे के साथ ऐसे डांस, थोड़ा 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 थोड़ा. मैंने कहा कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना. अब उसके पीछे भागना, उसको देखना है, उसको डांस करके दिखाना कि थोड़ी तो मूवमेंट हो. पहले मेरी नी भी चलनी बंद हो गई थी, अब तो मेरे नी पिन हट गया ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद. तो नेहा, enjoy the motherhood to its full blessing, and this is the time जहाँ पे पूरा अपना like a one more new life is entering into your already family members. So there is a addition, तो आपका पूरा habits will get changed around the new person in the family. So but we should all understand कि ये अपने ट्रैक पे बैक आने के लिए ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है. All of a sudden things won't fall into place
in a very fast manner. थोड़ा time लगेगा, but the important thing to understand this thing is that you should enjoy the every moment. और जो belly fat वाली जो बात है रही, तो that you always keep in mind that you have to intake a diet that is good in protein, as you are a feeding mother. And this belly हेलो fat, hello Neha, रुचि, yes, talk. Yes, ma'am. मैं डॉक्टर कुमुद में बात कर रही हूँ। Yes ma'am, मैं please go मेरा ahead. इनपुट्स बताना चाहूंगी कि सबसे तो पहले कि इजी इजी गोइंग, कि आप खुद को हार्श आप खुद की तरफ हार्श मत हो, कि ये एक फेज है। जैसे रुचि ने बोला कि आप एंजॉय करो मदरहुड, सिंपल बेबी स्टेप लो कि आप हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हो क्या, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आपका बच्चा कितने साल का है, कितने महीने का है या कितने साल वन का एंड है? हाफ ईयर का हो गया मैम। यस, 1.5 ईयर। तो आप ब्रेस्ट मतलब फीडिंग 6 मंथ तो डॉक्टर ने, हाँ आप ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ लेकिन बहुत कम, जब स्लीपिंग टाइम होता है, जैसे सुबह और शाम को और रात में 3 टाइम होता अभी है। क्योंकि मैं अभी आप कोशिश ब्रेस्ट करती हूँ कि फीडिंग उसे कर। ऐसे ही फिलअप करूँ, उसको खाना वाना खिला के ही फिलअप रखूं कि वो कम फीड हाँ, करे फिर। आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। ओके, आप हाइड्रेशन मेंटेन करो, आप स्मॉल स्टेप्स लो। ओके, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, तो कम से कम आप ट्राई करो कि 5 मिनट ही आप खुद के लिए निकालो। ओके, अगर आप ये हैबिट है, आप 5 मिनट निकालोगे, फिर 10 मिनट जब बच्चा सोता है तो आप ऐसा आपका टाइम रखो एक्सरसाइज का कि जब आप फ्री हो, यानी बच्चा सोया है, ऐसा आप कुछ टाइम निकालो। ओके, मैंने मेरा खुद का वेट लॉस, फर्स्ट टाइम वेट लॉस किया था जब मेरा बच्चा 2 साल का था। हाँ तब तक थोड़ा सा हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाता है 2 साल के बाद, तो हमें थोड़ा टाइम मिलना शुरू हो जाता है। तो आप हाँ, अब थोड़ा सा मिलना शुरू हो धीरे गया, धीरे। वही तो मैम। अब हाँ, 3 मंथ से ना मैंने यही स्टार्ट किया है, जैसे 20 मिनट वर्कआउट कर लिया, सुबह मॉर्निंग में कर लिया यस, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू। कंपलसरी होना चाहिए, पर आप हाँ थोड़ा सा ईटिंग हैबिट की तरफ देखो कि आप चॉइसेस, जैसे अभी पूरा सेशन हुआ कि क्या क्या आपको चॉइस करना है, उस पे ध्यान रखो। एकदम फुल फ्लेश डाइट नहीं होगा, और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त करना भी नहीं चाहिए कि आपने एकदम से सब बंद कर दिया, एकदम से आप शिफ्ट हो गए, क्योंकि आपको आपका हीलिंग भी चालू कंटिन्यूसली चालू रहता है बॉडी में। तो हम्म आप सिंपल सिंपल चेंजेस करो और थोड़ा इजी लो। जब ब्रेस्ट फीडिंग पूरा बंद हो जाएगा तब आप स्ट्रिक्ट कैलोरी काउंट पे जाओ, फिर तब आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक केजी, जो 1 kg का डम्बल्स ले लिया, एक रेजिस्टेंट बैंड ले लिया, इससे आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। आप एकेडमी का सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका कंटिन्यूटी में रहेगा। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, Thank you Kumudni, Dr. Ma'am. वेलकम। तो नेहा, आपको हैबिट बिल्डिंग और रेस्ट्रिक्टिव डाइट में नहीं जाना है, एकदम सपोर्ट शीट और हैबिट बिल्डिंग में धीरे धीरे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। Okay, so we have completed 1 hour together and had a great learning experience today. And our audiences asked wonderful questions. So in the end, I would conclude Ruchi, today's. I would Yes. like to ask Neha मैम कि नेहा मैम आप ना अमिता मैम से कनेक्ट कर लो, so that you will have a proper consultation and to understand कि हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है मैम, ओके Yes? ओके मैम। I think नेहा तो हमारे एक्सरसाइज पे भी है ना? नहीं, एक्सरसाइज पे मैम पहले थी मैं। अच्छा वो अच्छा। जो फर्स्ट बैच चला था ना 21 डेज का, उसमें भी मैं प्रॉपर नहीं हो पाती थी, मेरा छूट जाता था बार क्योंकि बार। लास्ट ईयर तो आपका बेबी वाज 6 months ओनली, व्हेन द 21 days सितंबर में हुआ था ना, एट द टाइम इट वाज लास्ट ईयर, अभी अगस्त हो गई, तो लास्ट ईयर योर बेबी वाज टू स्मॉल। राइट नाउ जैसे 1-1.5 साल हो चुका है, तो इफ यू फील लाइक देन यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग और ज्वाइनिंग एनी बैच। तो ओके मैम, एज पर योर कन्वीनियंस, तो आप देख लीजिए, लाइक गेट इन टच विद आवर पोर्ट platform, and then you can decide if the time is right, then you can join any of our exercise batch. ओके मैम, थैंक यू।
So, all right, Gauri, I express my gratitude and warm regards to all present. And together we have spent 1 hour beautifully learning this concept. With this, I रुचि end. Yes, sir. Yes, sir. अपने पास नेहा श्रीवास्तव है, उसका बेबी भी 1 साल की है और Yes, वो भी वर्किंग पे है, yes, उसको भी ऐसे टाइम नहीं मिलता था लेकिन मैनेज कर रही है वो भी। yes. तो नेहा शर्मा जी भी मैनेज कर सकती हैं। Yes, yes, definitely. So Neha ji, हाँ, actually there is one more Neha Srivastava, and she joined our procrastination batch in evening at 5 p.m. So she is also a mother of 1-year-old child, but her determination is strong, and she also shocks all of us with her regularity and her consistency and her determination to lose weight and gain the previous body. अभी उन्होंने ना 2 किलो वजन कम किया है लगभग 20 दिन में। डाइट Yes. फॉलो कर रही हैं, प्रॉपर मैनेज कर रही हैं धीरे धीरे, और एक्सरसाइज भी हो रही है उनकी। तो नेहा जी भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो टाइम निकाले तो उनका भी हो जाएगा। Yes. So Neha, Ritesh sir is the coach of Neha Srivastava, who is another young mom. So we welcome you also to, if for any of your queries, we will provide professional support to you. So sir, hopefully we 4 of us have answered her queries. And as there are no further questions and we have all the participants have completed 1 hour over here together learning and growing together. So with this, I thank everyone and I conclude today's session. And I thank our founder and our participants and all the coaches and nutritionists at this platform. And with this, I a bit goodbye to all here. गुड नाइट, Good night. थैंक Bye. यू। Bye. Bye, everyone. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Thanks.